Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. I welcome you all in today's session. And today we are going to talk about organizational theory. It's a very detailed and complicated and philosophical discussion. And we'll try to comprehend most of the issues related to our topic. Before I start the discussion related to organizational theory, let's have a look that what constitutes a true theoretical contribution. Whenever you think about theoretical contribution in the body of knowledge, these are the few aspects which you should always be bearing in your mind. Like the first thing you need to ask to yourself when you talk about theoretical contribution, that what new you're going to come up with. And by this expression of what new, we mean to say, does the paper make a significant value added contribution to current thinking or not? So that is the question which you are going to ask to your own self, that what you're going to write and whatever you're going to write, is that going to add some value in the current knowledge or not? The second question you need to ask to yourself is, so what? Which would mean, will the theory likely change the practice of organizational science in this area? कि आप जो contribution कर रहे हो, उस contribution का कोई फायदा भी है कि नहीं है? It should not be a statement for the sake of saying something. It should be something जिसकी के practical manifestation, practical implementation, implications हमें technically नजर आए. The third question which you can ask to yourself when you are talking about theoretical contribution is, why so? Which means that are the underlying logic and supporting evidence compelling or not? ठीक है, आपने जो भी एरिया सोचा है, उसमें जो भी आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो भी आपने वेरिएबल्स पे किए हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई लॉजिकल सपोर्ट आपके पास वो है या नहीं है. एंड ऑब्वियसली दैट लॉजिकल सपोर्ट कैन कम फ्रॉम your literature review and coming up with the reasons that why that particular topic is picked. When we talk about value added contribution, so that value addition is no doubt a tricky expression, but that would be considered in terms of its practicality. कि जब भी आप कोई कंट्रीब्यूशन की बात करो, तो जैसा भी आपको मैंने कहा कि आपका जो भी स्टेटमेंट है, आपका जो भी एक्सप्रेशन है, इट शुड नॉट बी जस्ट टू फिल द स्पेस, इट शुड बी देयर जिससे कि प्रैक्टिकली चीजें मैनिफेस्ट वो होती नजर भी आ सकें. उसकी टेक्निकल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वुड बेसिकली एड द वैल्यू. अब वो कंसर्न आपका जो वैल्यू एडिशन का है, वो इन्वेंशन से लेकर इनोवेशन तक वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में फॉलो अप किया जा सकता है. So, जब आप इन तमाम एक्सप्रेशंस को गो थ्रू करोगे, तो उससे ऑब्वियसली आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो वैल्यू एडेड क्रिएट वो हो जाएगा. So we started from what new, so what, why so, and in the why so we said that whatever you're going to come up with, that thing should have some logical and supportive evidence. Then again you have to consider that is it well done or not. By well done it means does the paper reflect seasoned thinking, conveying completeness and thoroughness? Okay, आपका जो thought process है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो, आपके एक्सप्रेशंस में यूनिफॉर्मिटी हो, आप एक स्टार्टिंग जिसको ओपनिंग आप कह सकते हो, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट, उसके बाद उसे किसी कंक्लूसिव डायलॉग पर पहुंचाकर आप खत्म करें. Another important thing जो कि राइटिंग में हमें बहुत क्रिटिकली देखनी पड़ती है, and that is, it's not just well done, it should be done well as well. And done well would mean, is the paper well written or not? उसमें किसी किस्म के expression errors, grammatical errors, spelling errors, इस तरह की चीजें वो ना हो. Okay, so it should be a good piece of writing. Another important expression is why now. Now the why now
क्वेश्चन वो एड्रेस कर रहा है कि is this topic of contemporary interest to scholars in this area or not, and that is the reason कि हम अपने डोमेन से रिलेटेड कॉल फॉर पेपर्स का सहारा वो लेते हैं. सो कंटेम्प्रेरी इंटरेस्ट के टॉपिक्स अगर आपके होंगे तो पब्लिशर्स उसको जल्दी पिक करते हैं. अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर बहस करने के लिए तैयार हो जिस टॉपिक पे ऑलरेडी बेशुमार मटेरियल वो अवेलेबल हो, तो उसमें अट्रैक्टिवनेस जो होगी रीडर्स की वो खत्म हो जाएगी. सो आपको इस बात को भी एम्फसिस करना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप बहस कर रहे हो, ये टॉपिक इस वक्त कंटेम्प्रेरी अहमियत का हामिल वो क्यों है. सो expressions like seasoned thinking and reasoned thinking, they are like complementary to each other. पहला expression तो इसमें मैं आपको यही दे सकता हूं. दूसरी बात ये कि when we talk about seasoned thinking, तो उसमें आपकी जो प्रोफेशनल थॉट है वो बहुत कारामद होती है, जो कि आजकल के कंटेम्प्रेरी जार्गन्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एड्रेस कर रही हो. और रीजन थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हो, आपके पास कोई एविडेंसेस हो जिन पर बेस्ड आप अपनी डिस्कशन को वो डेवलप कर रहे हो. सो आपको कंटेम्प्रेरी इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको पिक करना है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो राइटिंग से रिलेटेड हमें पिक करनी चाहिए, एंड दैट इज हु केयर्स, व्हिच मींस व्हाट परसेंटेज ऑफ एकेडमिक रीडर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. ओके, सो आपको क्या लग रहा है कि कौन से लोग, किस इंडस्ट्री के लोग, किस सेगमेंट के लोग आपकी उस रीडिंग को पिक करेंगे और क्यों पिक करेंगे? व्हाई डू यू थिंक इट्स योर आर्टिकल जो कि सबके लिए एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है? सो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना हमारे लिए जरूरी है जब हम अपनी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन की बात वो कर रहे हैं. सो आई रिपीट अगेन, आस्क योरसेल्फ व्हाट न्यू, सो व्हाट, व्हाई सो, वेल डन, डन वेल, व्हाई नाउ, एंड ऑब्वियसली who cares. Okay, so target market, जिस तरह आप एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को लॉन्च करने से पहले अपनी स्पेसिफिक सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग को सोचते हो, आप अपनी टारगेट मार्केट को टेक्निकली डिफाइन करते हो, फिर उस टारगेट मार्केट की जरूरत के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को टेलर करते हो. बिल्कुल उसी तरह जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको भी आपको टेलर करना आना चाहिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि जो लोग उसके रीडर्स हैं, जिन मैनेजर्स ने उसको अप्लाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, who are they and what are their actual requirements, जिनको फुलफिल करने के लिए आप उन कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर बात वो कर रहे हो. सो अगर आप थोड़ा सा इन एस्पेक्ट्स के हवाले से अपनी राइटिंग को पॉलिश करेंगे तो आई होप कि देयर वुड बी अ बिगर चांस कि नॉट ओनली यू विल गेट योर आर्टिकल पब्लिश्ड, बट यू विल गेट मोर रीडर्स. आपके रिव्यूअर्स बढ़ेंगे, आपके रीडर्स बढ़ेंगे, जिससे कि ऑब्वियसली आपका जो कंट्रीब्यूशन है इट वुड बी काउंटेड मोर एंड मोर. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद यू द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, बिकॉज इट्स अ वेरी एज आई टोल्ड यू कि फिलोसॉफिकल और डिटेल्ड एक्सप्रेशंस हमें इसमें यूज करने हैं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत क्लियर करने हैं अपने माइंड में, बिकॉज इन एक्सप्रेशंस का जिक्र वो बारहा हमारी डिस्कशन में आज इन्वॉल्व होगा, और अनलेस एंड अनटिल हम इन एक्सपेक्ट्स को, इन डेफिनेशंस को बहुत क्लियरली नहीं समझ लेंगे, हमारे लिए उन टॉपिक्स को कंप्रीहेंड करना वो मुश्किल है. सो शुरू में कुछ एक्सप्रेशंस जैसा आपके यहाँ पर दर्ज हैं, मॉडल एंड थ्योरी, हाइपोथेसिस, इसके ऊपर मैं कुछ आपसे रीडिंग्स वो करूंगा, और उसके बाद then I'll be shifting towards the course contents. So मैंने आपको जैसे अर्ज किया था कि मेरे साथ इन एक्सप्रेशंस को तवज्जो से एक मर्तबा पढ़ लीजिए ताकि हमारे जहन में आइडियाज क्लियर हो जाएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सबसे पहले वी आर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड थ्योरी. ओके, मॉडल एंड थ्योरी आर टू रिलेटेड टर्म्स, but a difference can be observed between the two. A theory is a conceptualized framework. It is a generalized phenomenon which is accepted by many people in the society. Okay, अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये बहुत क्लियरली आ रहा है कि आपकी थ्योरी का पॉपुलर होना वो जरूरी है, and the people should be agreeing to what you are saying.
बिकॉज अगर वो थ्योरी स्टार्ट में ही डिनायल में चली जाएगी तो ऑब्वियसली उसको आप एप्लीकेशन की तरफ शायद लेकर नहीं जा सकोगे. So model on the other hand is a physical, symbolical or verbal representation of a concept which has been found in order to make the understanding of something clearer. Okay, और यहाँ पर जो expression of model is not just restricted to the models we are looking at in a research paper. Model can be of anything. It can be a model of a car, it can be a model of a phone. So whatever we say a model is basically what? It's a physical, symbolical and verbal representation of a concept. ओके तो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक थीम है, वो एक मॉडल की शक्ल में प्रेजेंट हो रहा होता है. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड थ्योरी इज दैट theories can be considered as answers to various problems. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, that's why I have quoted for you कि the main difference between model and theory is that theories can be considered as answers to various problems identified especially in scientific world, while models can be considered as a representation created in order to explain a theory. ओके अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको तवज्जो से समझ लें कि थ्योरी दरअसल हल होगा, सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज का जो हमें साइंटिफिक वर्ल्ड में थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन वो नजर आ रही हैं, और मॉडल उस चीज की रिप्रेजेंटेशन होगी ताकि हम एक थ्योरी को रिप्रेजेंटेशन के अंदर लोगों की समझ के मुताबिक बाआसानी एक्सप्रेशंस के साथ वो एलेबोरेट कर सकें. सो अ थ्योरी इज ए जनरलाइज्ड थिंकिंग और कंक्लूजन ऑफ समथिंग. Okay, another important expression which I have picked for you, that theory is a generalized thinking or conclusion of something which is a consequence of an analysis. Okay, तो अब theory जो है वो it's not just something which you have seen in a dream. theory के बैकएंड के ऊपर एक पूरी वर्किंग वो शामिल है, जिस तरह हमने अपने शुरू के सेशंस में एक पूरी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात की थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन देन मूविंग टुवर्ड्स द प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिडक्शन. सो थ्योरी जो है उससे पहले वो एनालिसिस मौजूद होगा, आपके पास एक एनालिसिस होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ एनालिसिस जो है दैट इज द शेप ऑफ अ थ्योरी. ओके सो अ थ्योरी इज ऑलवेज प्रूवन साइंटिफिकली विद एविडेंस. ओके और द थ्योरी व्हिच इज नॉट येट प्रूवन कैन बी टेकन अप एज ए हाइपोथेसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस जैसे आपको पता है कि एक स्टेटमेंट है जिसका अभी हमारे पास कोई एविडेंस, अभी हमारे पास कोई उसका प्लस माइनस वो मौजूद नहीं है. So both social and physical scientists engage in theorizing knowledge. Okay, so everybody is trying to come up with their contribution. So social scientists जो हैं और जो physical scientists हैं उन सब ने knowledge को theorize करने की हमेशा कोशिश की है, which helps humans to understand things clearly. Okay, now let's have a look at what hypothesis is talking about. Okay, so अभी तक जो हमने बात डिस्कस की कि थ्योरी के बैकएंड के ऊपर एनालिसिस है और थ्योरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स का, और मॉडल उसकी रिप्रेजेंटेशन है. अब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है. अभी हम उसके एग्जांपल्स जो हैं अगली स्लाइड्स में वो डिस्कस करते हैं. सो व्हेन वी यूज द वर्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस कैन बी अ स्टेटमेंट जिसके बारे में अभी कोई प्रूफ हमारे पास अवेलेबल ना हो. सो हाइपोथेसिस ऑन द अदर हैंड इज ए mere idea or a concept. Okay, hypothesis can be just an idea or a concept which is not scientifically analyzed, कि जिसके बारे में अभी कोई शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है. This is an assumption made by scientists before our research. Okay, और जाहिर है कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी उन इन्वेस्टिगेशंस के बैकएंड के ऊपर जो फर्स्ट स्टेप है आफ्टर वंस द ऑब्जर्वेशन इज डन, दैट इज assumption. ओके फिर उन assumptions को टेस्ट करने के लिए हम आगे फर्दर अपने मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेसेस जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं. तो हाइपोथेसिस इज समथिंग जो कि अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड फिनोमेना नहीं है. सो हाउएवर वंस द हाइपोथेसिस इज एनालाइज्ड, जब हाइपोथेसिस एनालाइज हो गया एंड प्रूव टू बी करेक्ट और आइदर इनकरेक्ट, ये दोनों तरफ हम इसकी एक्सप्रेशन को लेकर जा सकते हैं, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ थ्योरी. तो वंस द हाइपोथेसिस इज प्रूवन करेक्ट और प्रूवन like untrue, तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है that can be taking the shape of a theory.
ओके, बट नॉट ऑल हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज। अब इस एक्सप्रेशन को भी हमें इंपॉर्टेंटली नोट करना है, बट नॉट ऑल हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज, क्योंकि बहुत से हाइपोथेसिस assumptions हमारे पास मौजूद हैं लेकिन उनको ना कभी एनालाइज किया गया या अभी उनके रिजल्ट्स हमारे पास कोई कंक्रीट बेसिस के ऊपर अवेलेबल वो नहीं है। So in addition, a theory can be used as a tool for understanding, explaining, and making predictions over a concept. However, theories are just conceptual frameworks. Theories can be proven to be wrong as well. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि theories can be proven to be wrong as well, depending on the proof. ओके, अब फॉर एग्जांपल थ्योरी, बहुत सी जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, इवन उनको भी चैलेंज वो किया जाना शुरू हुआ। उस मकसद के लिए आपके साथ में एक रिसर्च आर्टिकल वो शेयर कर रहा हूं। उस मकसद के लिए मैं स्लाइड्स को ऑफ कर रहा हूं और रिसर्च आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा। Okay, I hope my browser window is visible to you and my voice is audible. JSTOR, as you know, one of the best publishers we have, एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल उनका मैंने आपके साथ शेयर किया है, एंड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज दैट बैड मैनेजमेंट थ्योरीज आर डिस्ट्रॉइंग गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। Okay, now this is very interesting article that bad management theories are destroying good management practices. तो challenges हमारे पास हमेशा वो available हो सकते हैं। If I just click on its preview, I believe के you can look at the preview as well. If it is visible, please respond me in the Zoom group chat. Is the preview visible to you? Okay. आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका फॉन्ट बहुत स्मॉल है, लेकिन मैं आपके साथ इसको वर्बली शेयर करता हूं, और इसमें से एक पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बैड मैनेजमेंट थ्योरीज जो हैं वो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को किस तरह से हर्ट वो कर रही हैं। इट इज सेड, मैं एक पैराग्राफ रीड कर रहा हूं आपके साथ इस आर्टिकल में से। इट इज सेड, इन कोर्सेज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस grounded in agency theory, we have taught our students that managers cannot be trusted to do their jobs. राइट, आप सबको पिछले कोर्सेज के अंदर आपने गो थ्रू किया होगा एजेंसी थ्योरी, एजेंसी प्रॉब्लम, जिसमें कि हम शेयर होल्डर के राइट को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, तो ऑब्वियसली हम सारा ब्लेम उठाकर मैनेजमेंट के ऊपर वो डाल रहे हैं। उससे होगा क्या कि जो मैनेजमेंट का एक ट्रस्ट है, एक्चुअली हम उसको हर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि द मैनेजमेंट इज पुटिंग ऑल देयर एफर्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। Okay, but this theory is basically criticizing and putting at stake the trust of the management, which of course is to maximize shareholders value, and that to overcome agency problems, managers' interests and incentives must be aligned with those of the shareholders. ठीक है, तो हमने अलाइनमेंट क्रिएट करनी शुरू कर दी अब उनके कंपनसेशंस को भी शेयर होल्डर के रिटर्न के साथ, by for example making stock options a significant part of their pay. Okay, इसी तरह in courses on organization design grounded in transaction cost economics, we have preached the need for tight monetary controls. ओके, तो जब टाइट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पीपल की हम बात करेंगे तो उससे जो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर है लोगों का वो हर्ट हो जाएगा। सो ऑन वन साइड अगर हम थ्योरी की इंप्लीकेशन को देखें तो दैट साउंड्स गुड, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम थ्योरी की इंप्लीकेशन को देखते हैं तो उससे जो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर लोगों का हो सकता है, दैट इज लाइक नॉट एंटरटेन्ड. Likewise, another expression is given that in strategy courses we have presented the 5 forces framework जो कि माइकल पोर्टर ने प्रेजेंट किया to suggest that companies must compete not only with their competitors but also with their suppliers, customers, employees and regulators. अब हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम कंपेटिटिव फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर से लेकर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर तक हमने रादर देन कि उनके दरमियान ट्रस्ट एनवायरनमेंट की बात करें, हम उनको बार्गेनिंग का नाम देकर अपने से रिपेल कर रहे हैं. ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस का जो मॉडल है जो कि बेसिकली
एड्रेस करता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव को, उसके अगेंस्ट फिर हमारे पास रिसोर्स बेस्ड व्यू वो डेवलप होना शुरू हुआ, जिसमें हम अपनी कोर कंपिटेंसीज, अपने कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर ज्यादा फोकस वो करते हैं। इस तरह हम बहुत सी थ्योरीज का जिक्र कर सकते हैं। मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी की बात कर सकते हैं। बहुत सी थ्योरीज हमारे पास आ सकती हैं कि जिन थ्योरीज के होने से बाज़ औक़ात हम डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे शायद गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। So remember that we have to be very much careful in our context and usage of these theories, because unless and until हम अपने usage को appropriately elaborate नहीं करेंगे तो सिर्फ एक standalone theory sometimes can backfire. Okay, so that was the main context. जिस context के लिए आपसे मैंने ये article share किया that bad management theories are destroying good management practices, इसको डिटेल से जरूर पढ़िएगा. It's very interesting article जिससे कि हमारी बहुत सी जो research orientation है वो भी further clear हो पाएगी कि theories को कब, कहाँ, क्यों, कैसे वो use करना चाहिए. अब मैं इस slide, इस screen share को off कर रहा हूं and I'm moving back to my slides. So जिस sentence से I took you to the screen share, that was that theories can be proven to be wrong as well depending on the proof. However, theoretical knowledge is important. अब इस की इंपॉर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब तक हमारे पास कोई बेसलाइन इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसके ऊपर एक पूरी इमारत ऑफ रिसर्च शायद खड़ी नहीं कर सकेंगे. So however, theoretical knowledge is important in understanding different concepts and situations. एक स्टेप आगे और चलते हैं डियर. अब कुछ मॉडल को मैं एलैबोरेट करता हूं और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके साथ अब कुछ एग्जांपल्स भी मैं शेयर वो कर पाऊं. सो मॉडल इज ए, अभी हमने थ्योरी की डिस्कशन की, अब हम दोबारा आते हैं मॉडल के ऊपर. सो मॉडल इज ए फिजिकल, वर्बल और ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट और एन आइडिया. Models can be developed depending on the theoretical aspects. Models have been made in order to simplify the theoretical concepts, and these are used in many fields in the modern world. Okay, अब हम उसकी एक manifestation देखते हैं कि किस तरीके से मॉडल प्रेजेंट वो हो रहा है. For example, a person can imagine what his or her dream house should be like. And if he or she goes to an architect and explain his imaginative ideas, the architecture can make a graphical representational model. Okay, वो उसको एक 3D मॉडल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है, जिससे कि वो अपने उस ड्रीम को, अपनी उस विजुअलाइजेशन को फिजिकल टर्म्स में वो डेमोन्स्ट्रेट होता वो देख सके. Then it should be easier for the person to understand and see well his or her dream's house structure. However, a model is used to facilitate a clear understanding of phenomena, eliminating unnecessary details. Okay, now supposedly अगर आपकी एक थ्योरी जो है that is comprising of 7 pages, तो आप उस 7 pages थ्योरी को जब मॉडल प्रेजेंटेशन में लेकर आओगे तो मे बी a simple flow sheet diagram can explain the whole context. Okay, so a complex concept can easily be explained by using a model. इसका मतलब ये ठहरा कि मॉडल बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे उस कॉन्सेप्ट, आइडिया और थ्योरी का. So usually a model contains only the most necessary parts, जिसको हम bottom line concept का नाम भी दे सकते हैं, and it can also be made verbally, visually or using graphics. Models can be sketches as well as a particular code, and depending on the need we can decide the structure of the model. ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से डिमांडेड है, सो दैट हम मॉडल को के मुताबिक क्राफ्ट वो कर सकें. अब यहां तक जब हमने मॉडल एंड थ्योरी के रिलेशनशिप को डिस्कस कर लिया तो हमारे पास दो और अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू बी डिस्कस्ड, एंड दोस टू वर्ड्स आर आइडिया एंड अ कॉन्सेप्ट. ओके, जनरली हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन अल्फाज को बहुत कैजुअली वो यूज करते हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट राइटिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट रिसर्च कंटेंट्स, तो उन एक्सप्रेशंस में इन अल्फाज के मायने वो डिफरेंट कॉनोटेशंस वो प्रेजेंट कर सकते हैं. Therefore, let's have a look what is the difference between an idea and a concept. So the difference between an idea and a concept can best be understood from the standpoint of tactical execution. For example, an idea is a rough notion. Okay, जैसे यहाँ पे दर्ज है, an idea is a rough notion or inkling in our head
about something we like or want to do. Okay, जहन में एक vague सा concept develop हो रहा है, तो that is an idea. Okay, now it has raw edges. Idea अभी refine tune नहीं किया गया होता, so it has raw edges and often needs some fine tuning and pruning, and even further deliberation of additional inputs before it can take a viable form for planning and execution. So idea को अभी refinement की जरूरत हमेशा होती है. So idea को जब हम actually refine कर रहेंगे, तो that would be evolved into the concept. Okay, so psychologists often refer an idea as a mental structure या mental construct, क्या आपके जहन के अंदर एक तस्वीर जो है वो नमूदार हुई है किसी चीज के बारे में, जिसके बरक्स a concept is more or less the final form of an idea which has been gone through the process of fine tuning and pruning of its raw edges. तो concept जो है that is actually development towards the theory development. Okay, तो theory को evolve करने के लिए idea और theory के दरमियान में जो चीज एक transformational हमें phase में नजर आती है, that is the concept. Okay, so generally when it is a concept, one can mentally see the start point, end point, and the development path of transition points in between from the standpoint of execution. With this enlightenment, one just needs to sit down to translate the concept into a systematic game plan for immediate manifestation of the concept into a physical reality in the real world. ओके, तो अब हम कॉन्सेप्ट को जैसा यहां पर देख रहे हैं कि ये एक ट्रांजिशनल एस्पेक्ट हमारे पास मौजूद है, जो कि एक वेग आइडिया से आगे हमें लीड करेगा टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थ्योरी. सो इन बिजनेस एंड और एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड, अ कॉन्सेप्ट लीड्स टू अ वेंचर which in turn becomes a business when a team is put together to get the productive outcome or concrete deliverables shipped out to the कस्टमर. तो अब एक कॉन्सेप्ट ने हमें स्टार्टिंग से लेकर उसकी फाइनल एग्जीक्यूशन एंड एंडिंग पॉइंट तक वो हमें पहुंचाया. नो डाउट इसके बैकएंड के ऊपर वुड बी द आइडिया, इसके फ्रंट एंड के ऊपर वुड बी द थ्योरी, और इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट हमें डिफरेंट हाइपोथेसिस का सामना भी वो करना पड़ेगा. तो वो तमाम हाइपोथेसिस वुड बी अनप्रूवन स्टेटमेंट्स, और जो हम उन स्टेटमेंट्स को प्रूव करते चले जाएंगे, दैट वुड बी रिजल्टिंग इनटू डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज. ओके, यहां पर हमारा फर्स्ट सेशन टाइम वो खत्म हो रहा है. नेक्स्ट सेशन टाइम में प्लीज नेक्स्ट सेशन जूम मीटिंग में प्लीज ज्वाइन कीजिए, ताकि हम अपनी डिस्कशन को यहीं से शुरू वो कर सकें.